السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بادشاہ فیروز نے اپنے دور میں ہمیشہ اپنی رعایا کی بہت خدمت کی۔ وہ بڑا نیک اور اچھا بادشاہ تھا۔ اس کی ملکہ مر چکی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اس نے شہزادہ سلیمان رکھا۔ بادشاہ فیروز اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے 30 سالہ بیٹے شہزادے سلمان سے کہا، بیٹا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، جب تم چھوٹے تھے تو میرا ایک تاجر دوست باقر مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے پورے 1 ہفتے محل میں قیام کیا۔ باقر میرا جگری ساتھی تھا۔ جب وہ 1 ہفتہ رہ کر جانے لگا تو وہ اپنا ایک ہیرا محل میں بھول گیا۔ میں نے وہ ہیرا اب تک اپنے دوست کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میرے پاؤں تو اب قبر میں لٹک رہے ہیں۔ میں خود ہیرا باقر تک نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بیٹے، میری آخری خواہش ہے کہ تم وہ ہیرا میرے دوست کو واپس کرانا۔ اگر تم نے وہ ہیرا میرے دوست تک نہ پہنچایا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ شہزادہ بولا، ابا حضور، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ ہیرا آپ کے دوست کو لوٹا دوں۔ ویسے وہ ہیرا ہے کہاں اور آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ یہ کہہ کر شہزادے نے سوال کیا۔ ہیرا تو میرے پاس محفوظ ہے۔ میں تمہیں وہ ہیرا دکھا دوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا تاجر ساتھی باقر کہاں رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادے کو بڑا تعجب ہوا اور بولا، لیکن میں ہیرا آپ کے دوست تک کیسے پہنچاؤں گا جبکہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ بیٹے، میرا دوست تاجر ہے، تجارت کرتا ہے۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، کبھی ایک جگہ پر تو کبھی دوسری جگہ پر ہوتا ہے۔ تمہیں باقر کو ہر حال میں ڈھونڈ کر اسے ہیرا لوٹانا ہوگا، ورنہ میری روح بے چین پرندے کی طرح تڑپتی رہے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ چپ ہو گیا۔ شہزادے کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ کیسے اپنے والد کے دوست باقر کو ڈھونڈ کر ہیرا امانت کے طور پر واپس کرے گا۔ ابا حضور، جیسے بغیر نقشے کے خزانہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی بغیر کسی پتے کے آپ کے دوست کو اس کا ہیرا بھی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اب میں عجیب الجھن کا شکار ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ میں ہیرا آپ کے دوست تک کیسے پہنچاؤں؟ شہزادے نے پریشان ہو کر کہا تو بادشاہ فیروز بولا، میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ وہ انگوٹھی مجھے ایک جادوگرنی نے دی تھی۔ جادوئی انگوٹھی تمہیں بتائے گی کہ کس راستے پر جانا ہے، کہاں جانا ہے، لیکن وہ تمہیں فوراً تمہاری منزل تک نہیں پہنچائے گی، بلکہ کافی تگ و دو اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اور کافی عرصے کے بعد تم میرے دوست تک ہیرا پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھا اور پلنگ کے نیچے سے ایک مٹی سے آٹا ہوا بہت ہی پرانا صندوق اٹھا لایا۔ بادشاہ نے صندوق کو کھولا تو اندر ایک ہیرا اور ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ہیرا اٹھایا اور شہزادے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے میرے دوست کی امانت، تم اسے پوری حفاظت سے میرے دوست کو دینا۔ اس کے بعد انگوٹھی اٹھائی اور شہزادے کو دیتے ہوئے بولا، اور یہ ہے وہ جادوئی انگوٹھی جو ایک جادوگر نے مجھے تحفے کے طور پر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم اس جادوئی انگوٹھی سے پوری حفاظت کے ساتھ میرے دوست باقر کو ہیرا لوٹا دو گے۔ شہزادے نے دونوں چیزیں سنبھال لیں۔ وہ اپنے ابا حضور کی آخری خواہش کیسے پوری نہ کرتا؟ وہ ہر حال میں اپنے باپ کے دوست کو امانت لوٹا دینا چاہتا تھا تاکہ جب بادشاہ فیروز مرے تو اس کی روح کو راحت اور سکون ملے۔ شہزادے نے بادشاہ کو حوصلہ دیا اور بولا، آپ کی آخری خواہش انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادے کا بھی دل بھر آیا۔ شہزادہ اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے وہ سوچنے لگا، اگر بادشاہ اس دنیا سے فانی ہو جائیں گے تو وہ ان کے بغیر کیسے جیے گا؟ بادشاہ شہزادے کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، مت رو میرے بیٹے، وعدہ کرو کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم بزدلوں کی طرح بالکل آنسو نہیں بہاؤ گے۔ شہزادے نے بادشاہ سے پکا وعدہ کر لیا کہ وہ بالکل بھی نہیں روئے گا۔ ٹھیک ہے، اب مت رونا۔ اگر تم رو گے تو دنیا والے کیا سوچیں گے کہ ہمارا شیر بیٹا طاقتور اور بہادر ہونے کے باوجود بچوں کی طرح روتا ہے۔ تمہیں تو ابھی اور آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، گرنا ہے، پھر اس کے بعد سنبھلنا ہے۔ اب میں تو اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے بعد تمہیں ایک اچھا اور رعایا کا بھرپور خیال رکھنے والا بادشاہ بننا ہوگا۔ ایک نیک بادشاہ بننے کے لیے
तुम्हें पहले एक चट्टान की तरह मजबूत बनना होगा। अगर तुम हमारी बातों पर अमल ना करोगे और बहादुरी का मुजाहरा नहीं करोगे तो सिर्फ हमारा नामो निशान मिट जाएगा बल्कि रियासत भी तहस नहस हो जाएगी। बादशाह ने शहजादे को खूब नसीहतें की तो शहजादे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है अब्बा हजूर, मैं एक बहादुर बादशाह का बेटा हूँ, मैं कभी बच्चों की तरह आंसू नहीं बहाऊंगा। आपकी बताई हुई बातें बिल्कुल कीमती मोतियों की तरह हैं। मैंने अब ये अनमोल और कीमती मोती अपनी झोली में चुन लिए हैं। मैं भी आपकी तरह एक निडर बादशाह बनकर रियाया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा। बादशाह ने शहजादे के बढ़ते हुए हौसले को देखकर उसे शाबाशी दी तो शहजादे के चेहरे पर एक नए ज़म के साथ मुस्कुराहट आ गई। 2 दिन तो आराम से गुजरे, मगर तीसरे रोज़ ये खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह फिरोज़ का इंतकाल हो गया। रियाया तो शोक मना रही थी, तभी लोगों के दुख के मारे बुरा हाल था। ऐसे इंसाफ पसंद और रियाया का दिलो जान से ख्याल रखने वाले बादशाह बहुत कम को ही नसीब हुआ करते हैं। शहजादा सलेमान अपने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए बिल्कुल नहीं रोया। उसने सब्र किया और लोगों को मना कर दिया कि वो रोए धोए नहीं। अगर वो रोए धोएंगे तो उसके बाप की रूह तड़पती भटकती रहेगी। अल्लाह से दुआ करें कि वो मेरे अब्बा हजूर को बख्श दे और उन्हें जन्नत में रहने की जगह अनायत करे। शहजादे की बात पर अमल करते हुए लोगों ने सब्र करने को तरजीह दी और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, हमारे नेक बादशाह को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसकी रूह को चैन अता फरमा। शहजादे को यह देखकर कुछ इत्मीनान मिला कि रियाया ने उसकी बातों पर अमल किया। बादशाह फिरोज की वफात के बाद शहजादा सलेमान अब तख्त व ताज का मालिक बन गया। अब वो शहजादा सलमान नहीं बल्कि बादशाह सलमान के नाम से मशहूर हो चुका था। बादशाह सलमान अपनी रियाया को वो तमाम सहूलतें दी जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। तकरीबन 6 दिनों बाद बादशाह सलमान अपने पालतू घोड़े पर सवार होकर हीरा और जादुई अंगूठी साथ लेकर एक अनजाने सफ़र पर रवाना हो गया। वो अपने घोड़े को सर पर दौड़ाए जा रहा था। फिर उसका गुजर एक जंगल से हुआ। जंगल में पानी का एक शफाफ चश्मा बह रहा था। बादशाह सलमान को बहुत प्यास लग रही थी। उसका पालतू घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह घोड़े से उतरा और चश्मे से पानी पीने लगा। बाद में घोड़े को भी पिलाया। काफ़ी सफ़र करके बादशाह बहुत थक चुका था। उसने अपने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और खुद भी दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी वहां आ पहुंचा जो कि देखने में 30 बरस का लगता था। आदमी के साथ 2 गधे भी थे जिन पर हीरे जवाहरात लदे हुए थे। आदमी बादशाह के पास आया और बोला, मैं तिजारत के सिलसिले में मुल्क खरासान जा रहा था कि तुम मिल गए। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? ये कहकर आदमी ने सलमान बादशाह से उसका नाम पूछा। बादशाह ने उसे अपना नाम बताया। मैं पहले मुल्क यमन का शहजादा था। अब मेरे अब्बा हजूर, मेरा मतलब है मुल्क यमन के बादशाह फिरोज दुनिया फानी से चले गए तो उनके बाद मैं मुल्क यमन का बादशाह बना हूँ। मेरा नाम बादशाह सलमान है। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तिजारती आदमी ने पहले बादशाह को तुम कहकर पुकारा था, अब आप कहकर पुकारने लगा। अच्छा, तो आप मुल्क यमन के बादशाह हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी सल्तनत तो वहाँ अकेली होगी। बादशाह बोला, मैं अपने अब्बा हजूर मरहूम के एक दोस्त को उनकी अमानत पहुँचाने आया हूँ। इतना कहकर बादशाह ने उसे सारी दास्तान सुना दी और ये भी बताया कि उसके पास एक जादुई अंगूठी और हीरा भी है। तिजारती आदमी बहुत लालची था। उसके पास काफ़ी दौलत थी, लेकिन वो और ज़्यादा दौलत पाना चाहता था। खासकर वो जादुई अंगूठी को हर हाल में बादशाह से हासिल करना चाहता था। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आपको कुछ इस हकीर फ़कीर पर एतबार हो तो आप इसके साथ सफ़र कर सकते हैं। वैसे आप इस पेशकश को ठुकरा देंगे क्योंकि आप एक अजीम बादशाह हैं, जबकि मैं एक आम सा इंसान हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। मैं तुम्हारे साथ सफ़र करने पर तैयार हूँ। वैसे भी अगर 2 आदमी इकट्ठे सफ़र करें तो सफ़र का पता ही नहीं चलता कि मंजिल करीब आ जाती है। तुम मुल्क खुरासान पहुँच जाना और मैं अपनी मंजिल पर रवाना हो जाऊँगा। बादशाह सलेमान ने जब ये कहा तो तिजारती आदमी बहुत खुश हुआ
کہ अब तो हीरा और अंगूठी उसके कब्जे में आ जाएंगे। तिजारती आदमी मौका मिलते ही सलमान बादशाह से हीरा और जादुई अंगूठी पाना चाहता था। बादशाह सलमान अपने घोड़े पर सवार हो गया, जबकि तिजारती आदमी अपने गधे पर बैठ गया और दूसरे गधे की रस्सी पकड़ ली। दोनों मुसाफिर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। दोनों उतरकर एक जगह पर बैठ गए। पत्थरों की मदद से आग जलाई। बादशाह सलमान अपने साथ खाना लाया था। खाना बासी हो चुका था, मगर अपनी जान बचाने के लिए बासी खाना लाजमी था। बादशाह ने तिजारती आदमी को भी खाने में शरीक किया। दोनों ने मिलकर खाया और वहीं लेट गए। थकन की वजह से दोनों को लेटते ही आंख लग गई। आधी रात का वक़्त था कि बादशाह ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी तो वो उठकर बैठ गया। उसने गौर किया तो पता ये चला कि ये आवाज़ जादुई अंगूठी से आ रही थी। बादशाह ने अंगूठी निकाली तो वहाँ से आवाज़ आई, ए नेक बादशाह, तेरा हमसफ़र तिजारती आदमी बड़ा ही लालची और मकार है। इसने मंसूबा बनाया हुआ है कि वो मौका मिलते ही तुझे लूट ले। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस आदमी को मौत की नींद सुला दे या चुपके से अपने घोड़े पर बैठकर आगे सफ़र पर रवाना हो जा। बादशाह सलमान सोच भी नहीं सकता था कि उसका शरीके सफ़र एक लालची इंसान है। बादशाह नेक था, इसने तिजारती आदमी पर तरस खाते हुए से नहीं मारा और आधी रात को अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। चलते चलते सुबह हो गई। वो मुसलसल चलता रहा और एक जगह पहुंच गया जहां एक कच्ची बस्ती आबाद थी। कच्ची बस्ती के लोग हालांकि गरीब थे, लेकिन वो अच्छे और मेहमान नवाज भी थे। उनकी ये खसलत थी कि जो भी मुसाफिर वहां से गुजरता तो वो मुसाफिर की मेहमान नवाजी करते और पेट भर कर खाना खिलाते। बादशाह का सफ़र कर कर के बुरा हाल था। उसका हुलिया भी बिगड़ चुका था। कच्ची बस्ती के लोगों ने बादशाह को देखा तो उसे एक शरीफ मुसाफिर समझते हुए अपने साथ ले गए। उसको खाना खिलाया, उसकी बड़ी अच्छी खिदमत की। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और उन्हें आराम पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद बादशाह घोड़े पर सवार होकर जाने लगा तो कच्ची बस्ती के लोगों ने उसको कपड़े में खाना बांध कर दिया ताकि बादशाह को रास्ते में भूख लगे तो वो खाना खाकर भूख को मिटा सके। बादशाह ने उनका शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में उसे भूख लगी तो उसने खाना खाया और जादुई अंगूठी निकाली और उससे पूछा, ए जादुई अंगूठी, मुझे बताओ कि मैं किस सिमत सफ़र करूं? अंगूठी में से आवाज़ आई, ए नेक दिल बादशाह, तू सीधा चलता रहे। सीधे रास्ते में एक झोपड़ी आएगी। झोपड़ी में एक इबादत गुजार बुजुर्ग रहते हैं, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। बादशाह जादुई अंगूठी की हिदायत पर अमल करते हुए सीधा चलता रहा। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। बादशाह घोड़े से उतर आया, घोड़े को एक सूखे दरख्त से बांधा और झोपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर उसे सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए। उन बुजुर्ग के चेहरे से नूरानियत झलकती थी और माथे पर मेहराब था, जो इस बात की निशानी थी कि ये बुजुर्ग बड़े नेक और इबादत गुजार हैं। बादशाह ने उन्हें अपने बारे में बताया, मेरा नाम सलमान है और मैं मुल्क यमन का बादशाह हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। बादशाह नीचे बिछी हुई चादर पर बैठ गया तो बुजुर्ग ने खुश इखलाकी से पूछा, क्या तुम फिरोज बादशाह के साहबजादे हो? बुजुर्ग के इस सवाल पर बादशाह सलेमान को बहुत हैरत हुई और वो बड़े अदब से बोला, जी हाँ, मैं मुल्क यमन के मरहूम बादशाह फिरोज का साहबजादा हूँ। लेकिन आप मेरे अब्बा मरहूम को कैसे जानते हैं? बादशाह के इस सवाल पर बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम्हारे अब्बा हजूर की वफात का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करे। तुम्हारे अब्बा मरहूम हमारे शागिर्द रहे थे। वो और हम बिलाशुबा एक ही उम्र के थे, लेकिन वो हमें बड़ी इज्जत देते और हमें अपना उस्ताद मानते थे। मैं उसे इल्म सिखाता था तो वो बड़े शौक से इल्म को सीखता था। मैं उसे खासकर अमानत में खयानत ना करने का दर्स दिया करता था। दूसरे दर्स भी देते थे, मगर अमानत में खयानत ना करने वाला दर्स हम उसे खास तौर पर देते थे। बादशाह हैरान हुआ कि क्यों उसका बाप हर मामूली सी शय भी अमानत वाले को वापस कर देता था। इसीलिए तो बादशाह फिरोज ने अपनी मौत से कबल उसे हीरा पहुंचाने का काम सौंपा था। उसने बड़े अदब से कहा, मुझे बहुत ताज्जुब है
کہ ہمارے ابا حضور مرتے دم تک آپ کے دیے ہوئے سبق پر عمل کرتے رہے، اور مجھے انہوں نے اپنی موت سے قبل ہدایت کی تھی کہ ان کے دوست تاجر کا ایک ہیرا ہے، وہ ان کو لوٹا دینا۔ آج میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ بزرگ بولے، مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ مرحوم بادشاہ فیروز مرتے دم تک ہمارے دیے ہوئے درس سے مستفید ہوتا رہا اور ہماری باتوں پر عمل پیرا بھی ہوا۔ بزرگ حقیقت میں بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ سلمان نے پوچھا، آپ یہاں اکیلے جھوپڑی میں کیوں رہتے ہیں؟ بڑھاپا آ گیا ہے، اور بڑھاپا آنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ویسے ہمیں زیادہ تر تنہائی میں رہنا اور عبادت کرنا پسند ہے، اسی لیے میں اپنے خاندان سے دور یہاں رہتا ہوں تاکہ بغیر کسی پریشانی کے عبادت کر سکوں۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش بھی ہونے لگی۔ بزرگ بولا، بارش ہو رہی ہے، تم اگر چاہو تو رات یہیں بسر کر سکتے ہو۔ بزرگ کی بات سن کر بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تو بزرگ معمول کے مطابق مسکرائے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، چلو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کریں۔ بادشاہ سلیمان اور بزرگ نے جھوپڑی کے باہر موجود ایک تالاب سے وضو کیا۔ وہ تالاب بزرگ نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ وضو کے لیے انہیں پانی کی تلاش میں نہ جانا پڑے۔ دونوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور کھانا کھایا۔ بادشاہ بزرگ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا، اسے بزرگ پر بڑا رشک آتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ سلیمان نے بزرگ سے اجازت چاہی تو بزرگ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، میاں تم جا سکتے ہو، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا اور اپنے والد مرحوم کی روح کو آرام پہنچانے کے لیے ہر حال میں امانت واپس لوٹانا۔ جی میں آپ کی باتوں پر ضرور عمل کروں گا، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پناہ دی۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ بزرگ نے بھی خدا حافظ کہہ کر بادشاہ کو رخصت کر دیا۔ ایک دن کے کھٹن سفر کے بعد بادشاہ ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کا بادشاہ بہروز بڑا ہی سنگ دل اور بے رحم تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم سے اسے بددعائیں دیتی، لیکن مجال ہے کہ بادشاہ بہروز پر بددعاؤں کا کوئی اثر ہوا ہو۔ بادشاہ نے وہاں کے ایک دیہاتی سے پوچھا، یہ کون سا ملک ہے؟ دیہاتی نے بادشاہ کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا تم مسافر ہو؟ جی ہاں، بادشاہ سلیمان نے جواب دیا تو دیہاتی آنکھوں میں خوف لاتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ کسی غیر آدمی کو اپنے ملک میں قدم رکھنے نہیں دیتا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم چلے جاؤ۔ بادشاہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنا دوست سمجھو، اگر تم ایک روز کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنے دو تو میں ضرور ظالم بہروز بادشاہ کو سبق سکھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ جادوئی انگوٹھی؟ حیرت سے دیہاتی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے جس کی مدد سے ہم بادشاہ کو سبق سکھائیں گے۔ بادشاہ سلیمان نے اسے کہا، لیکن اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بھی ایک بادشاہ ہے۔ دیہاتی ظالم بادشاہ سے تنگ آ چکا تھا، اس نے بادشاہ سلمان سے کہا، بہروز بادشاہ بہت ظالم ہے، میں اس کے بہت ظلم برداشت کر چکا ہوں، لیکن اب نہیں۔ دیہاتی بادشاہ سلیمان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گیا۔ دیہاتی نے بادشاہ سلیمان کی خوب خدمت کی۔ رات ہو گئی، دیہاتی اور اس کی بیوی بچے سو گئے تو بادشاہ چپکے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھا اور جادوئی انگوٹھی نکال کر اسے پوچھنے لگا، اے جادوئی انگوٹھی، مجھے بتاؤ کہ میں اس ملک کے ظالم بادشاہ بہروز سے اس ملک کی رعایا کو کیسے چھٹکارا دلاؤں؟ جادوئی انگوٹھی سے آواز آئی، اے نیک دل بادشاہ، مجھے زمین پر رگڑ، اس عمل سے مجھ سے ایک دیو نکلے گا جو ظالم بادشاہ بہروز کو سبق سکھائے گا۔ بادشاہ نے جادوئی انگوٹھی کی بات پر عمل کیا اور اسے نیچے زمین پر رگڑا تو ایک دھواں سا پیدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک دیو میں بدل گیا۔ دیو مودبانہ انداز میں بولا، حکم کیجئے، غلام بادشاہ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس ملک میں ایک ظالم اور سنگدل بادشاہ حکومت کرتا ہے، تمہیں ظالم بادشاہ کو سبق سکھانا ہے، تمہیں یہ کام آج ہی رات کرنا ہے۔ بادشاہ نے دیو سے تہکمانہ لہجے میں کہا، جی میرے آقا۔ یہ کہتے ہی دیو پھر سے دھواں بن گیا اور دھواں فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ بے فکر ہو کر سو گیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے آنکھ کھولی، باہر گیا تو دیکھا پورے کے پورے ملک کی کایا پلٹ چکی تھی۔
सभी लोगों के चेहरों से खुशी के आवाज़ आसार नजर आ रहे थे। हर बंदा आज़ाद घूम फिर रहा था। बादशाह बुड़बड़ाया, देव ने अपना काम कर दिया। बादशाह देहाती के घर चला आया। देहाती भी बड़ा खुश था और उसके बीवी बच्चे भी खुशी से मसरूर थे। देहाती ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कल से भी बढ़कर उसकी खिदमत की। बादशाह देहाती और उसके बीवी बच्चों को अलविदा कहकर चल पड़ा। मैंने आपका काम कर दिया मेरे आका, पीछे से देव की आवाज़ आई। इसलिए बादशाह ने मुड़कर देखा तो देव फिजाओं में उड़ रहा था। शाबाश, तुमने जो काम किया वो लायके तहसीन है। बादशाह सलेमान ने देव को दाद दी। तारीफ सुनकर देव शर्मा सा गया और बोला, शर्मिंदा मत कीजिए आका। अच्छा ये बताओ कि तुमने जालिम बेरोस बादशाह को कैसे सबक सिखाया? बादशाह ने देव से पूछा। हुजूर, मैंने बेरोस बादशाह को इस तरह सबक सिखाया कि मैं उसको नींद की हालत में उठाकर एक खौफनाक जगह पर ले गया और उसे अपना गुलाम बना दिया। जब बेरोस बादशाह गुलाम बना तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने गुलामों और रिया पर कितना जुल्म करता था। अगर किसी पर जुल्म ढाया जाए तो कितना दर्द होता है। उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने उसे माफ़ी सिर्फ एक शर्त पर दी कि अगर रियाया को तंग किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेरोस बादशाह बड़ा डरपोक निकला। उसने वादा कर लिया कि वो आइंदा रिया पर जुल्म व सितम नहीं करेगा और रियाया का पूरा ख्याल रखेगा। देव ने सारा वाक़या कह सुनाया। बहुत खूब। बादशाह ने एक बार फिर उसे शाबाशी दी तो शर्म के मारे देव टमाटर की तरह लाल हो गया। बादशाह सलमान ने उसे हुक्म दिया, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम वापस अंगूठी में चले जाओ। जी हुजूर, देव ने झुककर कहा और धुआं बन गया। थोड़ी देर बाद वो धुआं गायब हो गया। शायद देव जादुई अंगूठी में वापस लौट गया था। बादशाह घोड़े को तेज तेज दौड़ाए जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। सफर करते करते बादशाह को प्यास लगी। इसने इधर उधर पानी की तलाश शुरू की। चंद मिनट बाद उसे एक कुआं मिल गया। इसने डोल ऊपर खींचा, डोल में पानी भरा और खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। बादशाह को चक्कर आने लगे। वो गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। बादशाह सलमान को बहुत घबराहट हुई। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वहाँ कई लोग और भी परेशान हालत में मौजूद थे। कुछ होश में थे और कुछ बेहोश पड़े थे। एक मशल जल रही थी जिसमें कुछ रोशनी थी। बादशाह ने पास बैठे एक परेशान आदमी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। मैं तो अपने भाई से मिलने उसके घर जा रहा था कि मुझे रास्ते में प्यास लग गई। मुझे एक कुआं मिला। मैंने कुएं से पानी पिया तो मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो खुद को यहाँ इस तारीकी में पाया। आदमी ने अपने साथ गुजरने वाली सूरत हाल बताई। बादशाह ने आदमी की बात सुनी तो उसे कुछ याद आने लगा। थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ याद आ गया कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। बादशाह सलमान ने जादुई अंगूठी से मदद लेने का सोचा और देव से कहा, बाहर आओ और हमें यहाँ से निजात दिलाओ। बादशाह ने जादुई अंगूठी निकाली। उसमें से देव बाहर आया और बादशाह ने हुक्म दिया कि हम सबको यहाँ से बाहर निकालो। देव धुआं बनकर गायब हो गया और फिर जैसे ही वापस आया, देव के वापस आते ही कैद खाना गुम हो चुका था और तमाम कैदी एक मैदान में खड़े थे। फिर बादशाह ने देव से कहा, अब जादुई अंगूठी में वापस चले जाओ। बादशाह का हुक्म सुनना था कि देव धुआं बन गया और गायब हो गया। कैद खाने में मौजूद तमाम लोग बादशाह सलेमान के बड़े एहसानमंद थे। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। वो सब लोग कैद से रिहाई पाकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वो लोग बार बार बादशाह की शान में मुस्तकिल तारीफी जुमले कह रहे थे, जिन्हें सुनकर बादशाह जवाब में सिर्फ मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह और बाकी लोग कैद खाने से बाहर आ गए तो सामने देखकर बादशाह परेशान हो गया, क्योंकि अब उसका घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ वो उसे छोड़कर गया था। बादशाह ने जादुई अंगूठी निकाली और उसके ज़रिए से मालूम किया कि उसका घोड़ा कहाँ है। तुम्हारे सामने जो एक दरख्त है, उसकी दूसरी सिमत तुम्हारा घोड़ा दरख्त के तने से बंधा हुआ है। अंगूठी से आवाज़ आई। बादशाह दरख्त की दूसरी सिमत गया। देखा तो उसका घोड़ा दरख्त के तने से बंधा हुआ खड़ा है।
पहले तो घोड़े का चेहरा मुरझाया हुआ था, मगर बादशाह को देखते ही घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा। बादशाह ने घोड़े से मोहब्बत का इजहार करते हुए उसकी पीठ पर थपकी दी और उस पर सवार हो गया। बादशाह ने सफ़र करना शुरू किया। उसका सफ़र कई घंटों तक जारी रहा। इस मुश्किल और थका देने वाले सफ़र को तय करने के बाद बादशाह सलमान एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक टूटा फूटा घर मौजूद था। बादशाह ने घर के अंदर जाने की ठानी। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए बादशाह बिला झुझक अंदर चला गया। बादशाह जब घर के अंदर आया तो उसने देखा एक बूढ़ा और लाचार आदमी पुरानी चारपाई पर पड़ा बीमारी से करहा रहा था। बूढ़े की हालत देखकर लगता था कि यह अभी मर जाएगा। अचानक बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। बादशाह सलमान ने आगे बढ़कर बूढ़े को कुछ सहारा दिया। बूढ़े की खांसी रुकी तो वो बादशाह को ऐसे घूर रहा था जैसे पूछना चाहता हो कि तुम कौन हो। बादशाह ने उसकी नज़रों को देखकर भांप लिया कि बूढ़ा उससे क्या पूछना चाहता है। सो उसने खुद ही कहा, मैं मुल्क यमन का बादशाह सलमान हूँ। बूढ़े को फिर से खांसी शुरू हो गई। जब उसकी खांसी रुकी तो बूढ़े ने बमुश्किल कहना शुरू किया, मेरा नाम बाकर है, मैं पहले एक सौदागर था। इतना कहकर बूढ़ा रुक गया और दोबारा जोर जोर से खांसने लगा। उधर बूढ़ा मुस्तकिल खांस रहा था, जबकि उधर बादशाह सलमान बाकर सौदागर का नाम सुनकर हैरान हुए जा रहा था। जब बूढ़े की खांसी थमी तो उसने फिर से बोलना शुरू किया, मैं बहुत से मुल्कों में जाकर तिजारत करता था। आहिस्ता आहिस्ता जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। मेरी औलाद मुझसे तंग आ चुकी थी क्योंकि मैं बूढ़ा और लाचार हो चुका था। मेरे 3 बेटे थे, उन्हें मेरा बूढ़ा वजूद बर्दाश्त न होता, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर यहाँ फेंक दिया। बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल करके फिर से खांसने लगा। खांसी के बाद उसने फिर से बात शुरू की, बेटों ने मेरी सारी जायदाद मुझसे छीन ली और हीरे जवाहरात का खुद ही आपस में बंटवारा कर लिया। सबसे छोटे बेटे को सबसे कम जायदाद मिली तो उसने बड़े भाइयों से पूछा कि उसे कम जायदाद क्यों दी गई। जब बड़े भाइयों ने उसे जायदाद देने से इनकार किया तो छोटे भाई ने बड़े भाइयों को खंजर से कत्ल कर डाला। उसके बाद सारी जायदाद खुद ले ली। वो हीरे जवाहरात लेकर जा रहा था कि रास्ते में डाकू आ गए, जिन्होंने उसे मार दिया और हीरे जवाहरात लेकर फरार हो गए। इस तरह तीनों ने जायदाद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जबकि जायदाद तो एक को भी रास ना आई। अब मैं अकेला यहाँ अपनी बकिया जिंदगी के दिन काट रहा हूँ। सारी कहानी सुनाकर बूढ़े ने एक सर्द आ भरी और बादशाह की तरफ देखा, जो हैरत के मारे उसे तके जा रहा था। आप सौदागर बाकर हैं? बादशाह ने ऐसे लहजे में पूछा जैसे उसने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। हाँ, मैं ही बाकर सौदागर हूँ, बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। बादशाह ने अपने मरहूम वालिद के बारे में उसे बताया और उसे अमानत यानी हीरे की भी याद दिलाई। पहले तो बूढ़े को कुछ याद ना आया और वो इनकार करता रहा कि वो बादशाह फिरोज को नहीं जानता। बूढ़ा वाकई सब कुछ भूल चुका था, मगर बादशाह सलमान ने उसे मरहूम बादशाह के बारे में मज़ीद मालूमात दी तो उसे सब कुछ याद आ गया। बूढ़े ने बादशाह सलमान के हाथ चूमे। बादशाह ने बूढ़े को हीरा देते हुए कहा, मुझे अब्बा हजूर मरहूम ने यह हीरा आप तक पहुंचाने का कहा था। ये कहकर इसने सारी रवादात सुना डाली। बूढ़ा हैरत से हीरे को देखे जा रहा था। फिर इसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोस्त मरहूम ने यह हीरा अब तक अपने पास एक अमानत के तौर पर संभाला हुआ था और बिलाखिर उसने ये अमानत मुझ तक पहुँचाकर ही दम लिया। इसके बाद बादशाह बूढ़े को लेकर वापसी के सफ़र पर चल पड़ा। वो रास्ते में जादुई अंगूठी की मदद से रास्ता मालूम करता और आगे चला चलता। आखिर एक दिन वो अपने मुल्क में पहुंच गया। उसकी मुल्क की रियाया का ख्याल था कि बादशाह सलेमान कहीं चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, मगर बादशाह को सही सलामत देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। महल के तमाम वजीर मुशीरों का खुशी के मारे बुरा हाल था। बादशाह ने बूढ़े सौदागर बाकर का शाही तबीब से इलाज कराया। 1 माह बाद बाकर की खांसी खत्म हो गई और वो खुद चुस्त और तवाना महसूस करने लगा। बादशाह खुश था कि उसके अब्बा मरहूम की रूह अब पुरसुकून होगी। बूढ़ा सौदागर बाकर जब तक जिंदा रहा, बादशाह सलेमान ने उसे अपने अब्बा हुजूर की तरह अजीज रखा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔